गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। जैसे कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन है वो पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो आज से इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होगी। चैप्टर 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल is an important part of every identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere, but do all society look at the boys and girls in the same way? We will try and answer these questions in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them in their future roles for men and women. We will learn that most societies value men and women differently. The roles women play and work they do are usually valued less than the roles of men play and their work they do. This chapter will be also explain how inequalities between the men and women emerge in the area of work. लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी असमता है कि जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार हम स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं। ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुष द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच में काम क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। फिर हम चर्चा करेंगे ग्रोइंग अप इन सामुआ इन द 1920। देखिए 1920 के दशक में सामुआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना की रिपोर्ट के अनुसार हम इसे पढ़ेंगे। द सामुअन आइसलैंड अ पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ small islands in the southern part of Pacific Ocean. In the 1920, according to the research report of the Samoan Society, children do not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity on the islands. Young people therefore before learned to undertake long fishing expedition, but they learned these things in a different points in their childhood. सामुआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का ही समूह का ही भाग है। सामुअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना या घर का काम सीखना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछलियाँ पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। As soon as babies could not work, their mothers on other adults no longer look after them. Older children, often as young as a 5 years old, took over the responsibilities. Both boys and girls look after their younger siblings. But by the time boys was about 9 years old, he joined an older boys in the learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after a small children or innards for adults till they were teenagers. But once they become a teenagers, they had much more freedom. After the age of the 14 or so, the girls also went on a fishing trips, worked in the plantation. They learned how to weave basket. Cooking was done in a special cooking houses where the boys were supposed to do most work while girl helped with the preparation. छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते हैं उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। यह जिम्मेदारी बड़ों बच्चों पर आ जाती है कि उन्हें प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता है तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता है और बाहर से के काम सीखता है। मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब 13-14 साल की ही नहीं हो जाती थीं
छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थीं। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थीं तो वे अधिक स्वतंत्र हो जाती थीं। लगभग 14 वर्ष के होने में के बाद भी वही मछली पकड़ने जाती थीं, बगानों में काम करती थीं और डालियाँ बुनना सीखती थीं। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियों उनकी मदद करती थीं। तो देखिएगा, आज की रीडिंग यहीं फिनिश होती है। तो मैंने आपका एक पेज आज कंप्लीट कर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं सेकंड पेज कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।